जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે हिंदी विषय भणવાનું છે। ધોરણ 9 ચેપ્ટર 3 क्या निराश हुआ जाए, જેના 3 વિડીયો આપણે આગળ જોઈ ગયા અને ચેપ્ટર પણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે। આપણે ફક્ત સવાલ જવાબ જોવાના હતા, તો હવે સવાલ જવાબ જોઈએ એ પહેલાં એક વખત હિન્દીમાં જ હું તમને આખા પાઠની સમજૂતી ટૂંકમાં આપી દઉં। હિન્દીમાં એટલા માટે કે આપણે જે સવાલ જવાબ છે એ હિન્દીમાં જ લખવાના હોય છે ને, તો હિન્દીમાં આજે હું હિન્દીમાં ભાષાંતર કરીશ या બોલીશ એ મોટાભાગે સવાલ જવાબમાં આવી જતા હોય છે, આવી જતી હોય એવી જ સમજૂતી હું મોટાભાગે લઈશ। આખો પાઠ હવે લેવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી। લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી, નિબંધ પ્રકારનો પાઠ છે અને જે દરેક હોમવર્કમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓને કદાચ સમજ ન પડે કે કેવી રીતે લખવું, તો જે વર્કશીટમાં જેટલા પ્રશ્નો આવે એટલે એ વર્કશીટનું એ વિશે એ તારીખનું લેસન લખી લઉં। બીજો વિડીયો આવે બીજી તારીખમાં જેટલા પ્રશ્નો આપ્યા હોય એટલા લખી નાખવાના। એવું નહીં કે ચાલો એકસાથે બધા એક વાક્યના લખીએ, એકસાથે મોટા લખીએ કે એકસાથે વ્યાકરણ લખીએ, એવું કંઈ કરવાની જરૂર નથી। આજની તારીખનું લેસન આવ્યું છે તો આજની તારીખનું આખું એ વર્કશીટમાં જે લેસન આપ્યું છે એ લખી નાખવાનું, બીજા વર્કશીટનું સાથે જ લખવાનું। નવા પેજ ઉપર દરેક વખતે આખા પાઠમાં દરેક વખતે નવા પેજ ઉપર નવા વિડીયાનું લેસન એ લખવાની જરૂર નથી। એ જ પેજ પર જગ્યા વધતી હોય ત્યાંથી ટોપિક 2 એવું કંઈ સાથે લખવા માંડવાનું, ટોપિક 3 એવું કંઈ સાથે લખવા માંડવાનું। આ રીતે લખવાનું અને સારા અક્ષરે લખવું, તમારું લખાણ તમને વંચાઈ શકે એવી રીતે લખવાનું। અને બીજી વાત, હિન્દીમાં પહેલાં પણ કીધેલું, એક વખત ફરીથી કીધું, આપણે અંગ્રેજીમાં લખતા હોય એવી રીતે નથી લખવાનું। શિરોરેખા આ જે લીટી ઉપર આપેલી હોય છે એને શિરોરેખા કહેવાય। તો શબ્દો લખો, અક્ષરો લખો એ પહેલાં શિરોરેખા બાંધવાની અને પછી તમારે લખવાનું। અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ લખે છે અને પાછળ એક જ અક્ષર ઉપર શિરોરેખા દોરે છે, આગળના 3 અક્ષર ઉપર શિરોરેખા દોરેલી જ હોતી નથી। તો હિન્દી વિષયમાં તો શિરોરેખા વગરનું લખાણ ચાલે જ નહીં, તો માર્ક કપાઈ જતા હોય છે। તો ધ્યાનથી લખવું। અમુક અક્ષરો લખવામાં પણ વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે। હૃદય લખે હૃદય, હૃદય લખવાનું હોય તો હ કરીને અંદર નાનકડા અક્ષરે ટપાલી જેવો ર કરવાનો હોય છે। ચોપડીમાં તમારે નિરીક્ષણ કરીને જોવું, હૃદય એને કહેવાય। અમુક શબ્દોમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે, તો બની શકે તો ચોપડીમાં પાક્કું નિરીક્ષણ કરીને અમુક શબ્દોમાં ફેરફાર કરીને તમારે લખવાનું। ઠ અને ઢમાં પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે। ઠળિયાનો ઠ કેવો હોય, એક જ રાઉન્ડમાં ઠ કરવાનો હોય, અને ઢગલાનો ઢ કેવો હોય, એક રાઉન્ડ કહીને અંદર નાનકડું બીજું રાઉન્ડ આવે એને ઢગલાનો ઢ કહેવાય। તો ઘણી જગ્યાએ આવા શબ્દો આવે છે, અક્ષરો આવે છે, તો ધ્યાનથી લખવા। હવે ટૂંકમાં આપણે પાઠ હિન્દીમાં આગળ ટૂંકમાં જોઈતા જશું અને પછી છેલ્લે પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું। અને મોટા પ્રશ્નોના જવાબ હું આખા કદાચ વ્યવસ્થિત બોલી ન શકાય, ભૂલાઈ પણ જતા હોય, અમુક વાક્યો છે, આ છે તે છે, તો હું મારી રીતે હિસાબે જેટલું યાદ રહે, જેટલું ધ્યાનમાં આવે એટલું હું બોલીશ। પણ તમે આખો પાઠ આખા વિડીયા સાંભળીને સમજીને જે પાઠમાં જે વાક્યો મારાથી કદાચ રહી જતા હોય, ચૂકાઈ જતા હોય, એ પણ પાઠને અનુલક્ષીને તમારે પ્રશ્નને અનુલક્ષીને જે જવાબ આવતા હોય તે પૂર્ણ રૂપમાં જવાબ લખવા। मेरा क्या निराश हुआ जाए, लेखक समाज की जो परिस्थिति है, वातावरण है, देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार प्रश्न में आवे छे, ये सब देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। इसके उपरांत बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग काम कर रहे हैं, उसके चरित्र पर दोष लगाना, दोष निकालना, ये सब बात दिखाई दे रही है। ईमानदार आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा वातावरण देश में फैला हुआ है। एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को संदेह और शंका की दृष्टि से देखते हैं। हमारा आगे कीधुं तेम जितने ऊंचे पद पर लोग बैठे हुए हैं उसमें उतना ही दोष निकाल दिए जाते हैं। एक व्यक्ति आरोप के जवाब में प्रति आरोप लगाते हैं। इस तरह का वातावरण माहौल देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। एक आदमी ने कहा था एक बार कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, कुछ काम नहीं करता वह सुखी है। किस तरह से? बिना काम किए तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। बिना काम किए क्या तुमको खाना पीना मिल सकता है, रोजी रोटी घर और संसार चल सकता है? नहीं चल सकता। पर किस हिसाब से यह कहा है कि अगर
आप कुछ काम नहीं करते तो सुखी हो। किस बाबत में? अगर कोई आप काम नहीं कर रहे तो कोई आपके काम में दोष नहीं निकालेगा, इस बाबत के लिए सुखी है। परंतु ऐसा नहीं चलता। काम जो लोग कर रहे हैं उसमें दोष ही निकालने लगते हैं। सब लोग अच्छे गुणों को दिखाई नहीं देते, बताते नहीं लोग दूसरों को बुरे और खराब बाबत। जो कोई व्यक्ति के अंदर एक ही दोष हो पर वह बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, परंतु जो उसी व्यक्ति में बहुत से अच्छे गुण होते हैं वह नहीं बताते। जो ऐसा करते हैं लोग, ये बताते हैं अच्छे गुण, तो समाज में पॉजिटिविटी, अच्छा वातावरण बनता है और लोगों में सारी भावनाएं भी उभर कर आती है। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। कैसा नहीं हो रहा है? जो अभी बात बोली वही, और आदमी में दोष ही दिखाई देते हैं सभी लोगों को, और दोष को ही बढ़ा चढ़ाकर बता। इस प्रकार का जो वातावरण है यह निश्चय ही चिंता का विषय है। भारतवर्ष में गांधी जी ने और तिलक जी ने क्या ऐसा स्वप्न देखा था? क्या ऐसा भारतवर्ष हो, ऐसा स्वप्न देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन, उसकी संस्कृत सभ्य भाषा, संस्कृत सभ्यता क्या गह्वर में, अतीत के गह्वर में डूब गई है? आर्य द्रविड़, हिंदू मुसलमान और यूरोपीय भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव समुद्र क्या सूखी गया है? नहीं। व्यक्ति के भीतर ये आदर्शों पड़े हुए हैं। मनुष्य के आंतरिक ये सब बाबतें वो पड़ी हुई। विदेश से बहुत से लोग आकर हमारे देश में यहीं के होकर रह गए। संस्कृति, वहाँ की संस्कृति लेकर आए और हमारी संस्कृति पर भी उसका प्रभाव पड़ा, और हमारी संस्कृति और जो लोग आए उन सब की संस्कृति एक दूसरे में घुल मिल गई। इस तरह से आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र बन जाता है। धर्म के अनुयायी भी वहाँ से आए और हमेशा के लिए अपने देश में यहाँ के आकर रह गए। इन दिनों कैसा माहौल बना हुआ है? ईमानदारी और मेहनत करके प्रश्न में आवे छे, અને બે પ્રશ્ન 2-3 વાક્યોમાં એવા આવે છે બિલકુલ બરાબર હોય, સેમ જ હોય એવું લાગે, એકાદ વાક્યનો જ ફરક છે। બેમાંથી ગમે તે પ્રશ્ન પૂછાય તો સમજી વિચારીને લખવાનો, બરાબર? ईमानदारी से मेहनत नहीं, मेहनत करके जीविका रोजी रोटी चलाने वाले भोले भाले श्रमजीवी लोग पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फूल फाल रहे, इसीलिए लोगों की आस्था हिल गई है। दूसरा सवाल भी ऐसा ही है कि ईमानदारी लेखक के हिसाब से ईमानदारी और मेहनत करके जीविका कमाने वाले लोग श्रमजीवी के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। मनुष्य निर्मित उत्पन्न हुई यह परिस्थिति के कारण लेखक को यह बाबत बहुत अच्छी नहीं लगती। ये दूसरा प्रश्न है 2-3 वाक्य का। परंतु ये सब ऊपरी मनुष्य निर्मित नीतियों की खामी के कारण ये सब हो रहा है। मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा सामाजिक कामकाज को, सामाजिक कार्यों को बनाती है और ठीक साबित नहीं होने पर उसको बदल देती है। सभी लोगों के लिए नियम कायदे कानून एक ही बनाए गए, पर सबको अपने नियम कायदे कानून अच्छे नहीं लगते। किसी को अमुक कायदे कानून अच्छे लगते हैं तो खुश हो जाते हैं, किसी लोगों को वही कायदे कानून अच्छे नहीं लगते तो वो दुखी हो जाते हैं। हर युग में कायदे कानून, अलग अलग युगों में कायदे कानून बदलते रहते हैं। कसौटी पर खड़े होते आदर्शों से टकराते हैं, परंतु ये सामान्यतः दिखाई देने वाले जो भी बाबत है मनुष्य के मन में ऐसे ही घूमती रहती है। परंतु ये सब पहले भी हुआ है, आगे भी हो रहा है, परंतु यह सब देखकर हताश हो जाना अच्छी बाबत नहीं। भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं को संग्रह, प्रश्न में आवे छे, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है वही चरम है, वही श्रेष्ठ है। लोभ मोह, आ प्रश्न में आवे छे, लोभ मोह काम क्रोध आदि ये सब मनुष्य के अंदर रहले ये सब विकार है, ये सब हमेशा के विद्यमान, हमेशा के उपस्थित रहने वाले हैं। परंतु उन्हीं को शक्ति मान लेना और उन्हीं के इशारे अपने मन को छोड़ देना ये बहुत ही बुरी बाबत है, बहुत ही खराब आचरण है। तो ये अच्छी बाबत नहीं है और भारतवर्ष ने उन्हें उचित नहीं माना है। मनुष्य के अंदर जो ये विकार है काम क्रोध मोह लोभ,
उन्हीं के इशारे हम अपने जीवन को लगा लेते हैं, चला लेते हैं, तो बुरी बात है। हमारा मन कभी काबू में नहीं रहता, कभी कभी हर बात लोभ या किसी बाबत का लोभ ही रहता है, तो यह नहीं चलता। भारतवर्ष यह सब बाबत उचित नहीं मानता। उसके लिए संयम चाहिए, मर्यादा चाहिए, मन को काबू में रखने की बाबत चाहिए और बंधन बांधकर उसे बंधन में रखना चाहिए। परंतु कोई मनुष्य अगर अपना रास्ता भटक गए हैं या अपना रास्ता कहीं अलग बना लिया है, खराब रास्ते पर चला गया है, तो उन्हें उस रास्ते पर चला जाए ये अच्छी बात तो नहीं है। इसलिए अगर कोई मनुष्य खराब रास्ते पर चला गया है तो उन्हें ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। इन आदर्शों के सहारे हम उन्हें सही रास्ते पर लेकर आते हैं और ये जो विकार है उसको मर्यादा में रखना, ये बाबत उन्हें सिखानी चाहिए। परंतु कोटि लक्ष्य की बाबत है तो कोटि हजारों दरिद्रजनों है, उनकी हीन अवस्था के बारे में अनेक कायदे कानून बनाए हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, यह सब बाबतों में उनका विकास करना है। गरीब लोगों का, पछात जाति के जो भी लोग हैं, पछात वर्ग के हैं, उनका विकास करना आवश्यक है और उसे अच्छी तरह से उसका विकास हो, इसलिए और उसे लक्ष्य बनाकर ये लक्ष्य पूरा करने के बारे में जिन लोगों को कार्य में रखा हुआ है उनका मन एक स्थिर नहीं रहता, उसका मन पवित्र नहीं रहता। कैसे? तो जो कार्य उनको सौंपा गया है वह कार्य अच्छी तरह से वह पूर्ण नहीं करते और पुस्तक और जो कोई चौपड़ी नोंद होती है, नोंद में लिख देते हैं कि हाँ यह कार्य पूर्ण हो गया और ऊपर सरकार को के जहाँ ऑफिस में बताना होता है वहाँ बता देते हैं। पर अगर देखने जाए तो जो गांव में या जो काम पूर्ण करना किया होता है वह खत्म नहीं होता है, खत्म हुआ ही होता नहीं है। पर वो क्या करते हैं, वो लोग वो जो भी काम करने के लिए पैसा या चीज़ वस्तु दी जाती है सरकार द्वारा, वो सब बेच देते हैं या सभी जो पैसे अपने स्वार्थ के लिए वापस अपने खीसे में अपने स्वार्थ के लिए वो रख लेते हैं और जो काम किया है वह नहीं करते और देश के लिए अच्छा कार्य करने के बजाय वो अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। व्यक्ति मन हर समय आदर्शों से चालित नहीं रहा, व्यक्ति के मन में हर समय आदर्श ही नहीं बना होता है, कभी कभी अपने आदर्श भी छोड़ देते, बार बार कभी अच्छे बुरे लोगों के बार किसी के साथ बुरा व्यवहार हो, कोई अच्छा व्यक्ति हो तो भी वो कभी कभी आदर्श छोड़ देते, चलता है कितनी बार ऐसा किया, कितनी बार वैसा किया, अब मैं भी थक गया हूँ इसलिए सब चलता है। इस तरह का मनुष्य के मन में हो जाता है अमुक बाबतों। बड़े पैमाने पर मापदंड तो बड़े पैमाने पर क्षेत्र में मनुष्य की उन्नति विकास के विधान भी बनाए गए हैं। लोभ, मोह जैसे विकार विस्तृत होते हैं। एक बार कुछ कमा लिया तो दूसरी बार मनुष्य का लोभ और बढ़ जाता है, ज़्यादा कमाने का विचार कर लेते हैं। इस तरह मनुष्य के मन में लोभ के विकार विस्तृत होते जाते हैं और लक्ष्य की बात बिल्कुल भूल जाते हैं। जो लक्ष्य रखा हुआ है लोगों की उन्नति के लिए वह सब भूल जाते हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बना लिया जाता है और दक्यानुशी संयम को दक्यानुशी मान लिया जाता है। दक्यानुशी मतलब पुराने ख्याल वाला, कोई संयम मर्यादा से काम करता है या कोई अच्छा आदर्शों के साथ जीवन बिताता है तो लोग उन्हें दक्यानुशी उसकी मजाक उड़ाते हैं या पुराने ख्याल वाला मान लेते हैं, अच्छी बाबत नहीं है। परिणाम जो होना है वही होना है, परंतु कुछ थोड़े समय के लिए बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। परिणाम जो होना है वही होना है, परंतु यह सब थोड़े ही क्षणों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। थोड़ा समय माटे जा बधी बाबतो यह बाबत होती है, बाकी इसका नतीजा वही है, परिणाम वही है। परंतु भारतवर्ष के पुराने आदर्श इससे भी अधिक उभर कर सामने आते हैं। लोग बुरा काम करते, सभी जगह ऐसा वैसा बुरा काम करते कि लोगों में अमुक जगह पर बुरी बाबत ही दिखाई देती है। पर बहुत से लोग ऐसे होते ये भले बुरा करता है परंतु अपने आदर्श अभी भी जीवित है यहाँ वहाँ इस तरह से। तो इस तरह से अपने जो अच्छे आदर्श से पुराने आदर्श से ये उभर कर सामने आते हैं। भारतवर्ष ने कानून को धर्म के रूप में देखता रहे। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता रहे। अपन प्रश्न एकाएक कानून और धर्म में अंतर आ गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता। धर्म को सब लोग मानते हैं,
धर्म बुद्धि के कारण ही लोगों के मन में जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह सब विकार पर काबू पाया जा सकता है। लोग किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते क्योंकि वह उसकी धर्म के कारण उसकी बुद्धि से लोग ये विचार आ जाता है कि हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इस तरह से धर्म मनुष्य के मन में एक प्रकार का राज करता है, कानून से भी ये बड़ा होता है। धर्म के कारण लोग धर्मभीरु है, ये शब्द समूह में भी आता है। धर्मभीरु है, कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में लोग संकोच नहीं करते। कानून से लाभ उठाने में लोग जरा भी हिचकिचाहट नहीं अनुभवते, परंतु धर्म को धोखा नहीं दे जा सकता। लोग धर्मभीरु है, धर्म से डरते हैं। किसी का बुरा हो गया हमारे से तो हमारा भी भगवान ने बुरा कर दिया, तो एक बार ऐसा हो चुका है तो दूसरी बार हम डरेंगे। धर्म के कारण, ये धर्म बुद्धि के कारण हम डरेंगे। इस तरह से ये पाप हो गए, इस तरह से हमसे पाप हो गया तो इस तरह से धर्म से हम लोग सभी लोग डरते हैं। ऊपरी वर्ग में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, परंतु भारतवर्ष अभी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ें। अभी सेवा, एक ये वाक्य रह गया प्रश्न में, सेवा धर्म के कारण लोगों के अंदर सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य अभी बने हुए हैं। धर्मवाળો જે પ્રશ્ન આવે છે ને તે પ્રશ્નમાં આ વાક્ય પણ આવી જાય। तो ईमानदारी, सेवा, सच्चाई, आध्यात्मिकता कानून बने हुए वह दब अवश्य गए हैं, परंतु वह कभी नष्ट नहीं हुए, आज नष्ट नहीं हुए। आज भी मनुष्य के अंदर ये धर्म के कारण सभी लोगों के साथ प्रेम लागणी बनी हुई है। महिलाओं के सम्मान में सम्मान हो रहा है। झूठ और चोरी, इन सब बाबतों को गलत समझता है। धर्म के कारण ये सब बाबतें हो रही है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ये भी धर्म के कारण लोग गलत समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव किसी न किसी प्रश्न में करता ही आ रहा है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का आक्रोश है, समाचार पत्र पढ़ के लोगों में एक प्रकार का आक्रोश पैदा होता है कि ये व्यक्ति तो भ्रष्ट ही करता है और अच्छा पेज में उसका नाम छपा हुआ है, अच्छे काम में दान देता है, ऐसा छपा हुआ है और सम्मान, इस तरह से सम्मान भी प्राप्त कर लेता है। परंतु लोगों को इस तरह से खराब रास्ते से कमाया हुआ धन या सम्मान लोगों को अच्छा नहीं लगता और इस बाबत पर लोगों को आक्रोश, इन सभी लोगों को, सभी खराब कार्य करने वाले और सम्मान, खराब रास्ते से कमाया हुआ सम्मान के प्रति लोगों को क्रोध आ रहा है और उस पर गुस्सा आ रहा है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, दोषों को बताना, भेद खोलना यह बुरी बाबत नहीं। बुराई कब मालूम होती है? किसी एक व्यक्ति का दोष बताते हैं और उसमें रस लेना, यह बुरी बात है। इससे भी ज़्यादा बुरी बात कौन सी है? उसी व्यक्ति की बुरी बाबत बताने के बदले उसकी अच्छाई की बाबत उजागर न करने में यह सबसे अधिक बुरी बाबत बन जाती है। और दोषों का उद्घाटन एकमात्र खराब बाबत किसी की बताते हैं और दोष भूल को उद्घाटन किया करते हैं, यही एकमात्र करते हुए मान लेते हैं यह बुरी बाबत है। उससे भी ज़्यादा बुरी बाबत जागे कहते कि अच्छी बाबत को नहीं उजागर करना, यह बाबत सबसे ज़्यादा अधिक बुरी बाबत है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। बहुत सी ऐसी बाबतें हैं जो उजागर करने से, अच्छी बाबतें उजागर करने से समाज में, देश में अच्छा वातावरण बना होता है कि अगर अच्छे प्रसंग हम किसी को बताएंगे, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मेरा काम इसने कर दिया, इसका एक्सीडेंट हो गया तो बहुत से लोगों ने मदद की, इस तरह के अच्छे जो बाबत लोगों को हम बताएंगे तो सभी लोगों के मन में यह बाबत बढ़ जाए कि नहीं, अभी भी समाज में ईमानदारी है, सेवा है, तपस्या आदि ये सब बाबत बनी हुई है और लोगों के प्रति और श्रद्धा और आदर्श हमेशा बने रहेंगे और वातावरण, देश का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। और सब लोग जो निराश हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा वातावरण देख के, कैसा चोरी डकैती लूटपाट ये सब वातावरण देखकर जो निराश हो रहे हैं ना लोग, वो सब निराश होने के बजाय अच्छे से खुश रहेंगे। तो दो प्रसंग लेखक ने बताए हैं कि अच्छाई, प्रामाणिकता के इस तरह का दो प्रसंग प्रश्नों में आवे छे कि टिकट बाबू, एक बार लेखक है वो रेलवे में यात्रा कर रहे थे, टिकट के लिए 10 रुपये के बदले 100 रुपये का नोट दे देते हैं। टिकट मास्टर ने भी नहीं देखा और 10 रुपये का नोट समझकर रख लिया। 2-3 दिन बाद वो टिकट मास्टर लेखक को ढूंढ रहा है, ढूंढ के वो वापस उसके 90 रुपये हाथ में रख देते हैं और अच्छाई का प्रमाण देते हैं, साबिती देते हैं कि अभी लोग ईमानदार है। इस तरह का जो प्रसंग देखकर हमें लगता है कि देश में अभी भी अच्छाई देखी जा रही है और उनके चेहरे पर एक अजीब संतोष की गरिमा दिखाई जा रही है।
કહી શકો કે દુનિયા में सच्चाई और ईमानदार लुप्त થઈ ગઈ। કઈ રીતે કહેવામાં આવે કે दुनिया में आज भी बुरी बाबत और अच्छाई नहीं है, अवांछित घटनाएं भी बहुत सी ऐसी अवांछित घटनाएं हैं, और जब ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ठगी हो, किसी के साथ ठगाई हुई, धोखेबाजी हुई, इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली बहुत सी ऐसी अवांछित घटनाएं, किसी को हम बताते नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो बनी हुई है। एक दूसरा प्रसंग लेखक ने बताया है कि एक बार लेखक अपने बच्चों के साथ सब परिवार बस में यात्रा कर रहे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर बस चल रही थी। जंगल में बस कोई 10 बजे हो गए। सुनसान रास्ते पर बस ने जवाब दी, बस खराब हो जाती है और सब यात्री घबरा जाते हैं। बस कंडक्टर ऊपर लगाई हुई साइकिल लेकर चला जाता है कहीं कुछ दूसरा उपाय ढूंढने के लिए। बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि यहाँ डकैती हुई है 2-3 दिन पहले, और ये बस वाले सब लोग कंडक्टर और ये ड्राइवर मिले हुए हैं। इस तरह से सभी लोग ड्राइवर को मारने के विचार बना रहे हैं। लेखक के बच्चे भूखे प्यासे हो गए हैं और पानी का कोई ठिकाना नहीं है। आदमी भी सब लोग डर गए हैं। ऐसे में ड्राइवर को पकड़ने के मारने की साजिश सब यात्री कर रहे हैं, परंतु लेखक के समझाने पर लोग उन्हें मार तो नहीं रहे। तो उतने ही कुछ क्षणों के बाद 1.5-2 घंटे बाद वह जो कंडक्टर गया था साइकिल लेकर, वो आता है। प्रश्न है, वह आता है अपने साथ एक खाली बस लेकर आता है और साथ ही लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आता है। तो ये प्रश्न देखकर भी बताया जाता, कंडक्टर की सज्जता, ईमानदारी इससे उजागर होती है। तो यह प्रसंग को लेकर एक प्रश्न है। तो इसका फिर बाद में अब यहाँ पे क्या होता है, सब लोग उसे मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं ड्राइवर को। ये प्रसंग के दौरान अगर मान लो उसको मार दिया तो, और फिर बाद में वो बस लेकर आया तो सभी लोगों को अफसोस हो जाएगा। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग आए तो सबसे पहले सोचना, विचारना, चर्चा करके बाद में उसे आगे कोई निर्णय लेना। फिर सब लोग ड्राइवर से माफ़ी मांगने लगे हैं, और माफ़ी मांगने के बाद सब लोग को वहाँ जहाँ जाना होता है वहीं छोड़ देते हैं। जीवन में भी कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोगों ने ऐसे प्रसंग है जो इसे मैं भूल नहीं सकता। બધા પ્રસંગ તો એ વર્ણવી નહીં શકાય। હવે ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, बहुत से कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत से जगह पर मुझे धोखा, बहुत स्थल ऐसे हैं जहाँ मुझे ठगा भी गया है, मुझे धोखा भी दिया गया है, परंतु मेरे साथ विश्वासघात नाम की चीज़ भी मिली है। परंतु सभी जगह ऐसा नहीं होता। एक बार धोखा खाने के बाद, दूसरी बार खाने के बाद हर समय हमें ऐसा ही किसी के साथ ऐसा ही हमारे साथ होगा, ऐसा हम नहीं मान सकते। केवल हमें उन्हीं बातों का हिसाब रखना चाहिए जिसमें हमें धोखा खाया है। तो अगर हम ऐसी जहाँ हमें धोखा खाया है, हमारे साथ धोखेबाजी हुई है, विश्वासघात हुआ है, हम सब इसी बात का हिसाब रख कर बैठेंगे तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा, जीवन कष्टकर बन जाएगा। परंतु हमें ऐसी घटनाओं को बहुत कम है, हमें ऐसी घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए। और अकारण सहायता, बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रसंग ऐसे भी बने लोगों ने बिना कारण हमारी सहायता की, कहते हैं मेरी सहायता की है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ, दूसरे कोई जगह पर हम घूमने फिरने गए होते, हम किसी को पहचानते नहीं, फिर भी लोग हमारे कोई काम हो तो हमारी मदद करते हैं और हमारे मन को इस तरह से ढाढ़स दिया, तसल्ली बंधाते हैं और हिम्मत बंधाते हैं। इस तरह से हमारे मन को निराशा नहीं मिलती। कई बार रविंद्रनाथ ठाकुर अपने एक प्रार्थना गीत में प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े या हमें धोखा ही खाना पड़े, तो हे प्रभु ऐसे अवसरों पर भी मुझे शक्ति देना, मैं कभी विचलित ना हो और तुम्हारे ऊपर मैं कभी शंका या संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे पर पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। जो मनुष्य की विधि ये जो बाबतों है वो हमें बदलनी होगी। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा। वस्तुतः आए दिन मनुष्य की जो कायदे का जो भी है वो एक से नहीं रहता, वो बदलते रहते। और लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझना એટલે मरना, तो अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है।
तो मनुष्य के अंदर जो ये आशा की ज्योति है बुझी नहीं, हमेशा ये प्रज्वलित होती है, इसलिए मनुष्य कभी निराश नहीं होता। भारतवर्ष को पाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये मेरे मन, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ ને પછી આપણે સવાલ જવાબ જોઈ લઈશું। તસ્કરી, ચોરી, મનીષી, પંડિત, મેધાવી, માહોલ, પરિસ્થિતિ, નિરાધાર, ફરેબ, ધોકા, ભીરુ, કાયર, આલોડન, મથના, હિલોરણા, બીજો અર્થ નિકૃષ્ટ, અધમ, નીચ, ગુમરાહ, ભૂલા હુआ, पैमाना, मापदंड, दकियानुशी, पुराने ख्याल वाला, त्रुटि, कमी, गलती, कातर, लाचार। मुहावरे हूँ एम ज तमने अर्थ वाँची जाऊँ छूँ, तमे अर्थ वाक्य प्रयोग तमारी जाते ज वाक्य प्रयोग जाते ज लखी लेजो। मन बैठ जाना, उदास होना, मन को मारना, फलना फूलना, समृद्ध होना, विकसित होना, पर्दाफाश करना, भेद खोलना, ज्योति बुझना, मरना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। हवे आपणे प्रश्नोत्तरना 3 प्रश्नों छे ए जोई लेशुं। स्वाध्यायना जे एक वाक्यना प्रश्नों छे, एक वाक्यना प्रश्नों, 2-3 वाक्यना प्रश्नों अने आ जे सविस्तार प्रश्नों छे ए आपणे टूंकमां जोई लईए। बाकीना जे बाकीनुं जे स्वाध्यायनुं वर्क छे ए हुं तमने वर्कशीटमां लखीने मोकलीश। तो स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे थे? चोरी, डकैती, लूटपाट, दान चोरी, यह सब बाबतें भरे थे। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है, ऐसा लग रहा है मानो कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया? भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं को, संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार, यहाँ विचार की जगह विकार है, तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, यह सब विकार भरे रहते हैं। भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? बस कंडक्टर एक खाली बस और लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर लौटा था। प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई? तो आज देश में ईमानदारी, मेहनत करके कमाने वाले लोगों की, मेहनत करके कमाने वाले, आजीविका कमाने वाले लोगों के बदले धोखेबाजी और फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। यह सब देखकर लोगों के मन में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं माने? लेखक आजकल जो ईमानदार और मेहनत करके कमाने वाले लोगों के बदले फरेब और झूठ का बाजार गर्म है, मनुष्य नियमित इस परिस्थितियों को देखकर लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी बाबतों और इसके लिए कायदे कानून बनाए। इन सभी के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए कायदे कानून बनाए और व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का विकास करने के लिए यह सब बाबत इसके बारे में सोचा गया हुआ है। कई बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा यह भगवान से याचना की है कि समाज में, संसार में अगर मुझे धोखा ही खाना पड़े, ये मेरा कुछ नुकसान हो जाए, तो हे प्रभु, मैं ऐसी परिस्थिति में कभी विचलित न हो, और ऐसी परिस्थिति में हे भगवान, आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आप पर शंका या संदेह न करूं। लेखक निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो आ हूँ टूंकमां बोली जाइश, तमारे सविस्तार लखवाना छे। विडियो पाठ सांभळीने समझीने तमे तमारा हिसाबथी लखी शको। एवुं नथी के जवाब वहीमां आ वाक्य आपेલું જ નથી तो આપણે નહીં લખવાનું, આપણે આપણી સમજૂતીના હિસાબે, આપણી સમજ શક્તિના હિસાબે 2 વાક્ય આપણે આપણા પણ ઉમેરી શકીએ, એના વધારે માર્ક મળી શકે। પરંતુ નિબંધ નથી બનાવી દેવાનો। हाँ, 2 वाक्य भूलाई गया तो 2 वाक्य समझीने આપણે આપણા લખી શકીએ। लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो लेखकનું मन શા માટે બેસી જાય છે, उदास થઈ જાય છે? तो लेखक का मन बैठ जाता है क्योंकि आजकल समाज में, देश में चोरी, लूटपाट, डकैती जैसा माहौल बना हुआ है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचारी और जैसे सच झूठे समाचार दिखाई देते रहते हैं।
उच्च क्षेत्र में जो ज़्यादा काम करते लोगों उसके बारे में गलत धारणाएं बांध लेते, गलती दोष, सभी लोग एक दूसरे में दोष गलती खोदते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप बताते हैं, सभी लोग एक दूसरे पर शंका कुशंका करते। इस प्रकार का वातावरण देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो भारत में विदेश से बहुत से लोग आकर बस गए हैं, अपनी संस्कृति लेकर आए हैं और हमारी संस्कृति पर उसका प्रभाव पड़ा है। धर्म अनुयायी आए हैं बहुत से ऐसे जो अपनी संस्कृति और उन लोगों की संस्कृति मिलजुल कर एक अच्छे आदर्श बनाकर चलते रहते हैं और द्रविड़, भारतीय, हिंदू, मुस्लिम यह सब संस्कृति साथ में मिलकर महामानव भारतवर्ष को महामानव समुद्र इस तरह से बन गया है। धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया? धर्म को शा માટે श्रेष्ठ मानવામાં આવે છે? तो धर्म के कारण ही लोग धर्मभीरु बन जाते। धर्म के कारण ही लोगों के मन में जो विकार उत्पन्न होते, चोरी, लूटपाट, धर्म के जो मनुष्य के अंदर जो विकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब के ऊपर एक प्रकार का काबू रहता है। धर्म के कारण लोग दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। धर्म के कारण ही, धर्म बुद्धि के कारण ही मनुष्य किसी का बुरा नहीं चाहते और इसी तरह मनुष्य समाज में व्यवस्था स्थिर हो, इसलिए कायदे कानून भी बनाए गए हुए हैं और उसमें धर्म सबसे ज़्यादा, धर्म को सब लोग इस तरह से मानते हैं। कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो कंडक्टर जब लेखक और उसके परिवार बस में सब परिवार यात्रा कर रहे थे, बस अचानक जंगल में बंद हो जाती है। कंडक्टर एक साइकिल लेकर चला जाता है कुछ इलाज करने के लिए, बस का क्या किया जाए, और सब लोग इनको गलत समझने लगते हैं कि चोरी लूटपाट लोगों के साथ ये मिले हुए हैं। परंतु 1.5-2 घंटे के बाद वो कंडक्टर वापस आता है, साथ में एक खाली बस और बच्चों के लिए, लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आता है। इस तरह कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी बताई। तो विद्यार्थी मित्रों, एक वस्तु बीजी कहेवानी छे कि आज मुहावरामां आ मुहावरा पर्दापत्रक करना आ આપણે અભ્યાસક્રમમાં આ શબ્દ લખ્યો નથી। पर्दाफाश करना આ શબ્દ આવે છે, પરંતુ અહીંયા આપે છે पर्दाफाश करना આ શબ્દ આવે છે। મુહાવરામાં पर्दापत्रक करना આ આપણે અભ્યાસક્રમમાં લેવાનો નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જે વ્યાકરણ બાકી છે તે હું હવે આ તમને વર્કશીટમાં લખીને મોકલીશ। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।